गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज जो टॉपिक इंक्लूड करने जा रही हूँ वो है डिफरेंशिएशन, या फिर इसको साइटो डिफरेंशिएशन या सेल डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी बायो पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के पेपर थर्ड जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसमें हम डिफरेंशिएशन जो है उसके बारे में बेसिक चीज़ें हम पिछले 2 लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ एग ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है एग का, उसका डिफरेंशिएशन के दौरान क्या रोल होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देयर आर न्यूमरस एविडेंसेस दैट विच हैव सजेस्टेड दैट ओप्लाज्म इट हैज़ ए प्रीडोमिनेंट इफेक्ट ऑन द process of differentiation. For instance, during nuclei transplanting experiment of Gordon, the amphibian nuclei transferred to a new cytoplasmic environment changed their function within an hour or two to the new circumstances by assuming the condition and activity characterized by the nucleus that has been replaced. This is seen in normal fertilization when after penetration the compact sperm nucleus swells and assumes the appearance of the female pronucleus. Nuclei from cells of the mid-blastular stage which normally synthesize DNA but little RNA, then when they injected into the unfertilized egg, that is mature oocyte, synthesize RNA but not DNA. When these nuclei are injected into the activated egg, DNA it is synthesized. Nuclear nuclei which synthesize all kinds of RNA stop doing so when they first placed in cytoplasm of an uncleaved egg, but again synthesize transfer RNA and messenger RNA when transplanted embryo are reared through the gastrula and neurula stage. Fifth example is nuclei from frog brain cells which normally synthesize RNA and never divide, switches from RNA to DNA synthesis when injected into activated egg. The same nuclei injected into the maturing oocyte eases nucleic acid synthesis altogether, and all are rapidly converted into group of chromosomes or spindles. From these experimental results, it becomes evident that the state or nature of cytoplasm, it controls the particular state of nucleus as long as the cytoplasmic condition it is persist. Transplantation of nuclei into enucleated oocytes demonstrates that the cytoplasmic environment of the oocyte, it regulates gene activity in amphibia, in Drosophila, in the mouse, in several species of fishes, and in sea squids. Nuclei obtained from malignant neoplasm will revert to normal development when exposed to oocyte cytoplasm or when micro-injected into or fused with cells of early embryo. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने ऊपर की तरफ देखे, ये देखा कि हम न्यूक्लियस को यदि किसी दूसरे सेल एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं न्यूक्लियस को दूसरे साइटोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियस के अंदर उस साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो आ जाती है या उसकी विशेषताएं आ जाती हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो अपना जो मूल स्वभाव, न्यूक्लियस के जो जीन्स होते हैं वो अपना जो ओरिजिनल जो काम है उसको तो छोड़ देते हैं और नए एनवायरनमेंट में, जहाँ पर नए साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट में वो जाते हैं, उसके एनवायरनमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस साइटोप्लाज्म के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए नई तरीके के कंडीशंस के अंदर वो नए तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ शो करती है कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिफरेंशिएशन के दौरान एग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है।
Now we will come to the cytoplasmic maintenance of cell commitment. The first and most convincing point is that cellular potency is quite distinct from nuclear potency, and that nuclei give new cytoplasmic environments. They are capable of extensive रीप्रोग्रामिंग, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो न्यूक्लियस की पोटेंसी और साइटोप्लाज्म की पोटेंसी, जो सेल की जो पोटेंसी होती है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और न्यूक्लियस को यदि हम नए साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट के अंदर रख दें या उसको नया साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट दे दें तो उसकी रीप्रोग्रामिंग, न्यूक्लियस की जो है वो रीप्रोग्रामिंग जो है वो हो जाती है। Gene regulatory proteins, they are synthesized exclusively in the cytoplasm and then they return to nucleus to operate. All the numerous other proteins involved in the transcription and DNA replication, they have similar origin and destinies. यानी कि जो भी जीन के रेगुलेट करने वाली प्रोटीन्स होती हैं, जैसा कि आप सब लोगों ने स्टडी किया है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होती हैं और उसके बाद वो न्यूक्लियस में जाती हैं और न्यूक्लियस में जाकर के जीन जो है उनको रेगुलेट करने का काम करती हैं। इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट एनी ऑफ दीज मॉलिक्यूल that have short half-lives, they are constantly dependent on replenishment from the cytoplasm. यानी कि ये सारी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती हैं ये साइटोप्लाज्म से इनको replenishment जो है उसका निर्देश मिलता है। The masking and isolation of messenger RNA in cytoplasm and the initial production of some proteins in inactive forms, they provides further scope for the cytoplasm to exert influence on the nucleus in the long term. तो ये चीज़ें जो हैं वो बाद में साइटोप्लाज्म जो है उसके इन्फ्लुएंस में वर्क करती हैं। Whatever signals they are received from the cellular exterior, they are either encountered at the cell surface or accepted into the cytoplasm. यानी कि सेल के बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो भी यदि कोई सिग्नल देता है तो वो सबसे पहले जो है साइटोप्लाज्म के द्वारा जो है ग्रेस्प किए जाते हैं या सेल की सरफेस जो है उस पर आते हैं और उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर उनको जो है वो भेजा जाता है। साइटोप्लाज्म के बाद में जो है वो न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं। In either situation, the cytoplasm has the key role of mediating the transmissions of further molecular signals to the nucleus from the exterior. यानी कि बाहर से आने वाले जो मॉलिकुलर सिग्नल्स हैं उनको भी सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो है वो वेरीफाई करता है या साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर की रोल जो है प्ले करता है। इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट द सेल सरफेस इज साइटोप्लाज्मिक and is the interface of the cytoplasm and external world. Now it is clear that the cell surface is central to such phenomena as cell sorting out or so mediate the position of cell in a tissue. Now we will come to the molecular biology of differentiation. Differentiation जो है वो molecular level के ऊपर किस तरीके से organize होता है। Cytodifferentiation or cell diversification, it involves that among the proteins elaborated by individual cells, certain of them specifically characterize a particular diversification pattern. Thus, it may be inferred that the information passed on from the nucleus to the cytoplasm varies from one cell type to another. यानी कि हर सेल जो है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होता है वो सेल टू सेल डिपेंड करता है, हर सेल का अपना अलग होता है। दिस फिनोमिना मे बी एक्सप्लेन इन टू डिफरेंट वेज, ईदर द जीनोम्स ऑफ सेल्स दे आर डिफरेंट owing to a mechanism of differential replication of DNA, or they are identical, in which case differential transcription of DNA must takes place. Thus, in eukaryotes, the function of genes can be regulated anywhere between the gene replication and the release of complete polypeptide chain from the ribosome. The level at which regulation may occurs, it may be represented by as follow. जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीन रेप्लिकेशन, इनके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए के रेप्लिकेशन से डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं, 2 डीएनए जो हैं वो बनते हैं। इन डीएनए जो हैं या तो जो है वो
इंफॉर्मेशन जो है इस जगह पर जहाँ रेप्लिकेशन होता है उस जगह पर इंफॉर्मेशन जो है उसको मेंटेन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में डीएनए से जब आरएनए बनता है यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उस स्तर पर जीन्स जो हैं उनका रेप्लिकेशन रिलीज जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस स्तर जो है उस पर भी कंट्रोल की जा सकती है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी, और ट्रांसलेशन लेवल जो है उस पर भी कंट्रोल की जाती हैं। According to the activities of genes can be regulated at the level of genome, at the level of transcription और at the level of translation। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है जीन की एक्टिविटी जो है वो या तो जीनोम के लेवल पे हो सकते हैं यानी कि रेप्लिकेशन के लेवल पे हो सकते हैं, या फिर ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर कंट्रोल हो सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशन के लेवल पे कंट्रोल की जा सकती हैं। नाउ कंट्रोल ऑफ डिफ्रेंसिएशन एट द लेवल ऑफ जीनोम, जीनोम के लेवल पर यदि होती हैं तो किस तरीके से कंट्रोल होता है। ऑलमोस्ट यूनिवर्सली द होल जीनोम इज रिटेन्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। Thus, real difficulty in the determining to what extent it remains totally available for transcription. The changes at the level of genome it can be discussed in following 5 ways। यानी कि आप लोगों को सबको पता है कि जितना भी जीनोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, डिफरेंशिएटेड सेल जो है उसके न्यूक्लियस में होता है, लेकिन वास्तव में इस जीनोम में से कितना जीनोम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है, मतलब पूरे जीनोम में से कितना पार्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है, ये चीज़ जो है वो वास्तव में डिटरमिनिंग फैक्टर होती है, डिटरमाइनिंग फैक्टर होती है कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन का कंट्रोल होगा। जीनोम के लेवल पर जो चेंजेस होते हैं उनको हम इन 5 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। एक तो परमानेंट चेंज इन जीनोम, देन प्रोबेबली परमानेंट चेंज इन जीनोम, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन जीनोम, और मोर और लेस रिवर्सिबल चेंजेस, देन रेडिली अवेलेबल रिवर्सिबल चेंजेस। ये पॉइंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस